हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर सिलेबस। प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन कैसे हमारे बॉडी में हमारे सेल में बनेगा, उसकी क्या नीड रहेगी और कौन सी मैकेनिज्म से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, इसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। बच्चों, we know about the importance of protein in our body. So we know protein, it will act as structural and functional component of our body. Okay, so many structures in our body, many parts in our body, it is made up of protein. Say for example, in our blood we know there is particular type of protein, that is albumin, globulin, fibrinogen. Okay, in our muscles we know there is myosin type of protein. We know in hair, nails, skin there is keratin type of protein. Okay, so there is different type of the protein, they are present in our body. हमारे bones में कौन से type का protein होता है? There is osin type of protein. Okay, means to construct the body or to construct the cell, there is different type of proteins, they are needed in our body. Okay, so our body or our cell, it is made up of, we can say, protein, or protein acts as a structural part in our body. Secondly, not only to construct the structure but also functions. So we know for the metabolic activities we need various enzymes. Okay, and enzymes, they are basically proteins. All the enzymes, they are made up of protein, and we know the role of enzyme in our metabolic activity. Each and every metabolic activity in our body, it is catalyzed by enzyme. तो enzyme के बगैर हमारे biological activities, biological reactions जो होगी, it will not carried out. And all the enzymes basically they are made up of proteins. Secondly, we know certain hormones, many hormones, which are the chemical messenger in our body, they are also made up of proteins. Okay, so hormones, they carry out different function in our body, and majority of the hormones, many hormones, again they are made up of protein. Okay, so to carry out the function with respect to enzymes and hormones, they are basically made up of protein, and therefore it will act as a functional components. Okay, so protein हमारे बॉडी में बहुत ही जरूरी है, because it will act as a structural component, body की structure बनाने के लिए. Secondly, to perform different functions via enzyme and hormone. So with reference to structural and functional view, protein, it is very important for our body. ठीक है बच्चों, तो प्रोटीन हमारे बॉडी में जरूरी है. अब प्रोटीन जो है ये एक्चुअली मॉलिक्यूल, और इट इज एक्चुअली अ पॉलीमर. सो प्रोटीन की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इट इज एक्चुअली पॉलीमर. ओके, दैट इज प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड. प्रोटीन को और एक नाम है पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन, एंड बेसिकली इट इज पॉलीमर. Means we know any polymer, it is made up of what? It is made up of monomeric unit or monomer. So in the same manner, protein or polypeptide, it is now made up of monomer, and monomer of protein, it is now amino acid. Okay, so monomeric unit, amino acid, it will link together, form a long chain of amino acid. Suppose one amino acid, second amino acid, third amino acid, many amino acids, they will link together a long chain of that amino acid. It is now known as protein or polypeptide. Okay बच्चों, अब पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन जो है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में there is many amino acid and डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन दे आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में अलग अलग टाइप के प्रोटीन है, अलग अलग पार्ट में इन्वॉल्व होने के लिए, कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए, अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स. ठीक है ना, तो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी. अब ये प्रोटीन के अलग अलग टाइप्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, इसके बारे में देखते हैं बच्चों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको समझना है अच्छे से.
suppose it is link of amino acid or chain of amino acid, we know there is about 20 different type of amino acids they are present. जो हम डाइट लेंगे, जो हम खाना खाएंगे, जो प्रोटीन कंज्यूम करेंगे, तो बेसिकली इट विल बी डाइजेस्टेड एंड इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स. ये अमीनो एसिड्स में डिसोसिएट्स होगा. ओके, एंड दैट अमीनो एसिड्स which will be produced from that protein, it is of 20 different type. 20 different types के अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे सेल में, वो जमा रहेंगे. ठीक है, अब ये जो 20 अमीनो एसिड्स है उसमें से कुछ नाम हम ध्यान में रख सकते हैं. से फॉर एग्जांपल मिथियोनाइन इज देयर, और ग्लाइसिन, और वैलिन, और लाइसिन, या आर्जिनिन. तो कुछ इस टाइप के ये प्रोटीन के कुछ नाम है. कुछ नाम आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, पूरे नहीं. तो 20 अमीनो एसिड्स, और 20 अमीनो एसिड्स दे आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स. ओके, नाउ दिस इज चेन ऑफ अमीनो एसिड, and in this particular chain of amino acid, the sequence of amino acid, it is like that. Okay, 1 2 3 4 5. ये अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है, नंबर 1 पोजीशन पर आपको कौन दिख रहा है? मिथियोनाइन. सेकंड पोजीशन पर ग्लाइसिन, थर्ड पोजीशन पर वैलिन एंड सो ऑन. तो यहां पर इस पॉलीपेप्टाइड चेन में, इस प्रोटीन की चेन में एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का सीक्वेंस है. ठीक है, और पर्टिकुलर number of amino acid and particular sequence of amino acid in this chain, it will decides a type of protein. Okay, तो अमीनो एसिड कितने नंबर में है इस चेन में. ओके, और वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसा है. ओके, मिथियोनाइन, ग्लाइसिन, वैलिन, ये जो अमीनो एसिड्स है वो कौन से सीक्वेंस में आ रहे हैं, किसके बाद कौन आ रहा है, कौन पहले कौन दूसरे नंबर पर आ रहा है, दैट इज द सीक्वेंस. ठीक है, तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, इट विल डिसाइड व्हाट, इट विल डिसाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. ओके, हमारे बॉडी में जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन इन्वॉल्व है, एंजाइम्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए, तो हजारों टाइप के जो प्रोटीन है, हजारों टाइप के प्रोटीन अब कैसे बनेंगे. तो अमीनो एसिड का जो नंबर रहेगा चेन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में, प्रोटीन की चेन में, वो कितने नंबर में रहते हैं और वो कौन से सीक्वेंस में रहते हैं. ओके, उसका सीक्वेंस कैसा है. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, टाइप ऑफ प्रोटीन इट विल बी फॉर्म. ओके, तो यहाँ पर सपोज टोटल 5 अमीनो एसिड्स है और इस सीक्वेंस में है, तो एक पर्टिकुलर टाइप बनेगा प्रोटीन का. लेकिन इसमें एक आधा एक्स्ट्रा प्रोटीन आ गया, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स लिंक हो गया. ओके, नंबर्स में कोई चेंज हो गया, या फिर मिथियोनाइन जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो सेकंड में आ गया, या ग्लाइसिन सेकंड, ग्लाइसिन वैलिन की जगह आ गया. एक भी पोजीशन इधर से उधर हो गई, अमीनो एसिड के सीक्वेंस की कोई भी एक आधी भी पोजीशन यहां से वहां हो गई, इधर से उधर हो गई, एक्सचेंज हो गई, या नंबर चेंज हो गया. तो ऐसे में that type of protein it will be changed, it will be now again different type of protein it will be produced. ये वाला जो प्रोटीन था वो ये नहीं है, क्योंकि नंबर में या सीक्वेंस में अगर किसी भी टाइप का क्या आता है, चेंज आता है, तो टाइप ऑफ प्रोटीन इट विल बी चेंजेस. ठीक है बच्चों, तो 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड का यूज करके उसका नंबर और उसका सीक्वेंस इधर उधर अगर होता है, तो हम देख सकते हैं कि हजारों टाइप के प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बन सकते हैं. एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों. जैसे हमको बताया इन और इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 अल्फाबेट्स, ए से लेकर के जेड तक के 26 अल्फाबेट्स है. जैसे यहाँ 20 अमीनो एसिड्स है वैसे. ठीक है, 26 अल्फाबेट्स को अगर हम प्रॉपर नंबर और सीक्वेंस में रखते हैं तो एक पर्टिकुलर वर्ड्स बन जाता है. ठीक है, टी एक नंबर पर, ओ सेकंड, पी थर्ड नंबर, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर अल्फाबेट्स को रखते हैं तो एक प्रॉपर वर्ड बन जाएगा. ठीक है, एक आधा नया अल्फाबेट यहाँ पर ऐड करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, दूसरे टाइप का मीनिंग बनेगा, दूसरे टाइप का वर्ड बनेगा. या ये तीनों वर्ड में अगर इंटरचेंज होता है तो इस टाइप का नया वर्ड बन सकता है. ओके, या फिर
इस टाइप का वर्ड बन सकता है, मतलब वर्ड चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? इसका मतलब 26 अल्फाबेट का इस्तेमाल करके उसके नंबर और सीक्वेंस के अनुसार कितने वर्ड्स बन सकते हैं बच्चों? पूरी इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि millions of words they can be produced by using that 26 alphabets depending upon the sequence and number of alphabet। तो सेम अल्फाबेट की जगह यहां पर कौन है? अमीनो एसिड्स। ओके, एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड and sequence of amino acid in this chain, it will decides what? It will decides a type of protein। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट समझ में आया? प्रोटीन की क्या नेसेसिटी है हमारे बॉडी में, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। ठीक है, सेकेंडली हमने देखे कि प्रोटीन एक्चुअली क्या है। प्रोटीन मीन्स पॉलीपेप्टाइड, हजारों टाइप के प्रोटीन जो हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है, इट विल बी डिपेंड अपॉन नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन दैट पर्टिकुलर चेन। ओके, अब बॉडी में कौन से टाइप की प्रोटीन की नेसेसिटी है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, कौन सी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन दैट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन टाइम टू टाइम। ठीक, और ये जो कौन से टाइप का प्रोटीन बनाना है, इसका जो आर्किटेक्ट है दैट इज नाउ डीएनए। और वो डीएनए, वो इंफॉर्मेशन डीएनए में या प्रोटीन कौन सा बनाना है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए में होती है। डीएनए वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए में पहुंचाता है और एमआरएनए से वो प्रोटीन बनाता है। तो वो कैसे होगा ये हम देखते हैं बच्चों। दैट इज सेंट्रल डोग्मा और मेन थीम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेंट्रल डोग्मा और मेन थीम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मेन प्रिंसिपल या सेंट्रल डोग्मा या मेन थीम। ओके, कैसे बनेंगे अलग अलग टाइप के प्रोटीन, कौन कैटालाइज करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, उसके बारे में। Central dogma of protein synthesis, it was given by scientist Francis Crick। Okay, Crick scientist ने, Francis Crick scientist ने प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल डोग्मा एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वी नो DNA is there, which is main controller, which is main architect to form particular type of protein. That DNA, it produces mRNA। डीएनए ये mRNA बनाता है, मैसेंजर आरएनए। ओके, तो डीएनए से पहले mRNA बनेगा। सो वी नो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज देयर, टू स्ट्रैंड्स लाइक दैट। आउट ऑफ these two strands, one strand it will contribute for the formation of this mRNA। okay, out of two strand, one strand contribute for the formation of mRNA। नाइट्रोजन बेसेस जो डीएनए के इस स्ट्रैंड में है, वो नाइट्रोजन बेसेस कॉपी किए जाएंगे एमआरएनए पर, उसके कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, A2U और G2C इस मैनर में। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो रहेगी डीएनए की, वो कॉपी की जाएगी एमआरएनए पर। मींस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। पहली स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप को बोला जाता है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। सो इट इज नाउन एज first step, transcription, formation of mRNA from DNA। okay, second step में the sequence of nitrogen bases which is present on mRNA पर नाइट्रोजन बेसेस के जैसे सीक्वेंस रहेंगे, कोडॉन के फॉर्म में होते हैं। हमने देखे mRNA के स्ट्रक्चर में 3 सक्सेसिव नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन mRNA इज नोन एज कोडॉन। तो जैसे कोडॉन mRNA पर रहेंगे, नाइट्रोजन बेसेस के सीक्वेंस mRNA पे रहेंगे, वैसे वैसे वहां पर उस टाइप के अमीनो एसिड्स जुड़ते जाएंगे। मींस a sequence of nitrogen bases which is present on mRNA or genetic information which is present on this mRNA, it will decides what? It will decides sequence of amino acid
टू फॉर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। क्लियर? कंप्लीटली देखते हैं। सेंट्रल डोग्मा या मेन थीम एक लाइन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट विच इज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, डीएनए सर्टन जेनेटिक इंफॉर्मेशंस डीएनए में होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेसेस। डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होगा, ओके, और नाइट्रोजन बेसेस के जो सीक्वेंस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो एमआरएनए में पहुंचेगी। सो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। या सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। इन सेकेंड स्टेप certain genetic information which is present in mRNA, that is in the form of codon, they will decide what? They will decide sequence of amino acid in a chain, means they will decide the formation of protein. Okay, that second step it is now known as translation. ठीक है बच्चों? So that is transcription and translation. So in mechanism of protein synthesis we have to study these two important steps. पहले step transcription, दूसरी step translation. Okay? तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है बच्चों, हमको ये एक्चुअली इट इज वेरी लॉन्ग टॉपिक और ये हमको 3 पार्ट में देखना है। पहले पार्ट में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, दूसरे पार्ट में हम समझेंगे जेनेटिक कोड के बारे में, और थर्ड पार्ट में ट्रांसलेशन के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, आगे बढ़ते बच्चों। फर्स्ट स्टेप में in mechanism of protein synthesis we have to study about transcription now, process of transcription. So we know it is overall process of transcription. We have to now study about its mechanism. ये कैसे होगा? एक लाइन में तो हमने बोल दिया, पर इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है। ओके, बहुत सारे मैकेनिज्म या बहुत सारी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो। तो कैसे होगा डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन, उसके बारे में देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नाउ सपोज इट इज डीएनए, ये डीएनए एक्चुअली डीएनए वी नो डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड्स, दे आर हेलिकली ट्विस्टेड, स्पाइरली कॉइल्ड, ऐसा डीएनए होता है बच्चों। सिंपलिसिटी के लिए मैं इस टाइप का डीएनए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वैसा ही, जिसमें 2 स्ट्रैंड्स दे आर हेलिकली ट्विस्टेड एंड 2 स्ट्रैंड्स दे आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब। ठीक है, अब ये जो डीएनए है इसमें वी नो देयर आर 2 स्ट्रैंड्स, वन स्ट्रैंड is 3 prime 5 prime, second strand 5 prime 3 prime। तो ये स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम या ये वाले स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम भी हो सकता है, कोई भी। तो 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है। ओके, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स में आउट ऑफ दीज 2 स्ट्रैंड्स नाउ वन स्ट्रैंड इट इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है। इसको अब नाम याद रखो बच्चों, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, टेम्पलेट। सेकंड जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली, इट इज नाउ नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होती है, हमने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें से एक स्ट्रैंड को अब हम बोलेंगे टेम्पलेट, दूसरे को बोलेंगे कोडिंग। ठीक है, अब किसको टेम्पलेट बोलेंगे, किसको कोडिंग बोलेंगे? जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली है वो टेम्पलेट हो गई, और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले हैं वो कोडिंग हो। ऐसे 2 स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को और एक नाम है बच्चों, इट इज नोन एज एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंड कोडिंग स्ट्रैंड इट इज नाउ नोन एज सेंस स्ट्रैंड। ठीक, सो एंटीसेंस एंड स्ट्रैंड। सपोज ये डीएनए का सेगमेंट अब एमआरएनए बनाने जा रहा है, ये डीएनए का सेगमेंट अब एमआरएनए बनाने जा रहा है। ठीक है, so we know there will be the presence of different nitrogen bases, sequence of nitrogen bases, nitrogen bases they will pair A2T और G2C, ऐसी पेयरिंग रहेगी, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, ये सब स्ट्रक्चर है उसमें। ठीक है, now this DNA when it will be form mRNA,
इस डीएनए सेगमेंट में एमआरएनए बनाने से रिलेटेड एक यूनिट है। तो एट दिस पोजीशन नाउ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये कंप्लीट एक यूनिट है आरएनए बनाने, डीएनए का ये ऐसा यूनिट है जो एमआरएनए बनाने जा रहा है। इस पर्टिकुलर यूनिट में देयर आर नाउ 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट देयर इज द promoter now, last terminal part it is known as terminator, और ये जो मिडल है इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल पार्ट। डीएनए का छोटा सा यूनिट जो एमआरएनए बनाने जा रहा है, सिस्ट्रॉन भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 2 स्ट्रैंड टेम्पलेट एंड कोडिंग, ये एक यूनिट बन गया है जो ट्रांसक्रिप्शन करने जा रहा है, एमआरएनए बनाने जा रहा है। इस यूनिट में, जिसको अब हम बोलेंगे आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। तो ये बनाने जा रहा है अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 अलग अलग पार्ट्स है। इतना पार्ट से फॉर एग्जांपल इट इज नाउ द प्रमोटर रीजन, प्रमोटर पार्ट, फिर स्ट्रक्चरल पार्ट, और तीसरा ये जो पार्ट है दैट इज टर्मिनेटर पार्ट, टर्मिनेटर, ठीक है। 3 पार्ट्स हुए। प्रमोटर पार्ट इट इज प्रेजेंट टुवर्ड 5 प्राइम एंड टर्मिनेटर इज प्रेजेंट टुवर्ड 5 प्राइम। प्रमोटर इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड 3 प्राइम एंड टर्मिनेटर इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड 5 प्राइम। अब बच्चों मैंने ऐसा कहा कि प्रमोटर 3 प्राइम की तरफ है, टर्मिनेटर 5 प्राइम की तरफ है। किसके रेफरेंस से बच्चों? टेम्पलेट के रेफरेंस पे कि कोडिंग के रेफरेंस से? कोडिंग 5 प्राइम, सॉरी, promoter it is present always 5 prime and terminator it will be always toward 3 prime। तो प्रमोटर 5 प्राइम की तरफ है, ठीक है, और टर्मिनेटर 3 प्राइम की तरफ है। किसके रेफरेंस है? दैट इज विद रेफरेंस टू द कोडिंग एंड देयरफॉर प्रमोटर, ऐसा कहा जाता है कि प्रमोटर इट इज नाउ अपस्ट्रीम एंड टर्मिनेटर इट इज डाउनस्ट्रीम। बच्चों ये जो प्रमोटर और टर्मिनेटर्स होते हैं उनके जो पोजीशंस है वो जनरली हम कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस से लेते हैं, हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को रेफरेंस में नहीं लेते। तो अपस्ट्रीम मींस प्रमोटर रीजन के 5 प्राइम की तरफ इन कोडिंग स्ट्रैंड एंड टर्मिनेटर की तरफ है 3 प्राइम की तरफ इसके रेफरेंस से, कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस से, दैट इज नोन एज डाउनस्ट्रीम। सो इन दिस वे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। प्रमोटर रीजन में, प्रमोटर रीजन का फंक्शन ये होता है कि देयर विल बी बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। देखो बच्चों, डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज होता है, वैसे ट्रांसक्रिप्शन में देयर इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज हैव और आरएनए पॉलीमरेज बाइंडेड हियर, यहां पर इस पोजीशन में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, ओके। तो ये ऐसा रीजन है वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स इन प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन मींस ऐसा रीजन जो अलाउ करेगा आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, ठीक है। और वो अगर बाइंड हो गया तो फिर वो आगे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इधर से अनवाइंडिंग होती जाएगी इस डायरेक्शन में, आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, और टर्मिनेटर तक जाएगा और चेन बनाते बनाते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रोल प्रमोटर रीजन का। प्रमोटर रीजन में जनरली टी ऐसे सीक्वेंस होते हैं, उसको टाटा बॉक्स भी बोलते हैं जनरली, ठीक है ना। तो दैट इज प्रमोटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन में ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं कि जहां पर जो एमआरएनए बनने की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, एमआरएनए बनने की प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, तो दैट इज द टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, एमआरएनए की नई स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बनाना स्टार्ट होगा, ठीक है, और टर्मिनेटर रीजन में इट विल बी एंड्स, ठीक है। तो दैट इज विथ रेफरेंस टू द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब बच्चों टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड में कौन सी स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड
एमआरएनए नहीं बनाएगी, दो में से एक ही स्ट्रैंड कंट्रीब्यूट करेगी एमआरएनए बनाने से रिलेटेड। तो दो में से कौन सी स्ट्रैंड एमआरएनए बनाने से रिलेटेड काम करेगी, वो रहेगी टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, जो 3 प्राइम 5 प्राइम वाली जो स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड, वही अकेली कंट्रीब्यूट करेगी नया एमआरएनए बनाने से रिलेटेड, कोडिंग स्ट्रैंड कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। बच्चों इसका रीजन ये है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हमने देखे थे कि डीएनए पॉलीमरेज का लिमिटेशन है कि वो नई स्ट्रैंड जो बनाएगा वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनाएगा। सेम लिमिटेशन यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज में ये लिमिटेशन है कि वो जो नई स्ट्रैंड बनाएगा आरएनए की, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनेगा। मतलब ओल्ड स्ट्रैंड के कौन से प्राइम से कौन से प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम अगेंस्ट में। ठीक है ना, तो ओल्ड डीएनए की स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम 5 प्राइम है, तो उस पर जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगी। तो आरएनए हमेशा 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा करके ओल्ड डीएनए की जो स्ट्रैंड रहेगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड इट इज नेचुरली विच वन, दैट इज द टेम्पलेट। ठीक है बच्चों, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरएनए फॉर्मेशन इट विल बी टेक्स प्लेस ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड पर वो बनेगा और कोडिंग स्ट्रैंड जैसा रहेगा, उस पर जो नाइट्रोजन बेसेस रहेंगे वो कोडिंग स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसेस को मैच करेंगे और टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसेस के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। ठीक है बच्चों, कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे रहेंगे सेम टू सेम, ओनली टी इज रिप्लेस बाय यू, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे ए टू यू जी टू सी। ठीक है, ये डिफरेंस रहेगा रिलेटेड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नाउ फ्रॉम दिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए बनने जा रहा है। ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन पहले आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज इट विल बी गोइंग टू अटैच इन प्रमोटर रीजन। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज इट विल नाउ मूव फ्रॉम 3 प्राइम टूवर्ड 5 प्राइम, इस डायरेक्शन में स्ट्रैंड से मूव होगा आगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें, जैसे आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आया, ठीक है, तो स्ट्रैंड अनवाइंड होते गई और नए राइबोन्यूक्लियोटाइड दे आर नाउ एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड, दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल में ऑलरेडी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, वो नए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो जैसे जैसे आरएनए जैसे जैसे आगे आगे अनवाइंडिंग होते जाएगी, आरएनए पॉलीमरेज ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के आगे आगे बढ़ते जाएगा अनवाइंडिंग के साथ साथ। ठीक है ना, और एक एक राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएगा जो कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस से। मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड पर इफ देयर इज ए, here there will be U, suppose on template strand there is G, here there will be C, suppose there is C, here there will be G। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेसिस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर है उसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस ये एमआरएनए में आते जाएंगे और राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती जाएगी जैसे जैसे आगे अनवाइंडिंग होती जाएगी। ठीक है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आ गए, इसका मतलब यहां पर ये चेन बन गई राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की आरएनए की यहां तक। ठीक है, फिर अनवाइंडिंग और आगे बढ़ी, यहां पर आया। ठीक है, तो चेन इस टाइप से बढ़ी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इट विल बी ट्रांसफर टू टर्मिनेटर, यहां पर आ गया। जैसे ही वो यहां पर आया, there will be termination or formation of chain of mRNA, it will stop, mRNA की चेन बनना स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखते हैं तो इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आरएनए पॉलीमरेज को मदद करेंगे। तो यहां पर इनिशिएशन मींस देखो 3 स्टेप में mRNA बन रहा है, चेन इनिशिएशन इलोंगेशन हो रहा है सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में हो रहा है टर्मिनेशन। एमआरएनए का इनिशिएशन यहां पर हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर। ठीक है, जैसे जैसे आगे अनवाइंडिंग के साथ मूव होगा, नए नए राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, मतलब
इनिशिएशन हुआ, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वो अनवाइंडिंग के साथ चेन बढ़ती जाएगी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, आरएनए की, दैट इज नोन एज इलॉन्गेशन। और फाइनली टर्मिनेटर रीजन में आने के बाद में स्टॉप हो जाएगा आरएनए फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज टर्मिनेशन, ठीक है। तो इन दिस वे देयर विल बी 3 स्टेप। प्रोकैरियोट्स सेल में बच्चों इनिशिएशन और टर्मिनेशन से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आरएनए पॉलीमरेज को जो बाइंड करते हैं। एक होता है सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन के लिए, इनिशिएशन के लिए देयर इज द सिग्मा फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ में बाइंड करके इनिशिएशन करवाएगा। और टर्मिनेशन के लिए होता है बच्चों रो फैक्टर, ठीक है, जो टर्मिनेशन करेगा। तो फाइनली ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को फाइनली रिलीज कर देगा यहाँ, ठीक है। इन दिस वे दैट आरएनए इट विल बी रिलीज एंड दैट आरएनए इट विल नाउ कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसेस वहां पर कॉपी हो गए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर थी न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, नाइट्रोजन बेसेस के फॉर्म में, वो वहां पर कॉपी हो गए एंड इन दिस वे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स के लिए अगर है तो यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, ये जो एमआरएनए बना ये फाइनल एमआरएनए बन गया। प्रोकैरियोट्स के लिए उसको आगे प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं, इट इज नाउ फाइनल एमआरएनए, ठीक है। लेकिन अगर यूकैरियोट्स है तो यूकैरियोट्स में कहानी कुछ और है। यूकैरियोट्स में ये जो एमआरएनए बना, ये एमआरएनए अभी फाइनल एमआरएनए नहीं है, वो एक लॉन्गर एमआरएनए बनेगा। तो प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए बना वो फाइनल एमआरएनए है, उसमें फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेजेस की जरूरत नहीं है, मैच्योरेशन की जरूरत नहीं है। पर अगर ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की अगर बात है तो यूकैरियोट्स में ये एमआरएनए जो बना ये एमआरएनए नहीं है एक्चुअल में, इट इज मच मोर लेंथी, इट इज मच मोर लॉन्गर, ठीक है। सो हियर न्यू आरएनए 5 प्राइम हो गया, सपोज ये 3 प्राइम हो गया, ये एकदम लॉन्गर है। और सेकंड थिंग, बीच बीच में इसमें देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ नॉन कोडिंग रीजन, यहां पर ये नॉन कोडिंग रीजन है ऐसे इन दिस मैनर, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए जो रहेगा उसमें 2 टाइप के सीक्वेंस होते हैं, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। तो जैसे ये डीएनए हम देख सकते हैं, तो इतना जो रहेगा वो इसको इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन, इट इज इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। एक्सॉन मींस कोडिंग रीजन, इंट्रॉन्स मींस नॉन कोडिंग रीजन। तो यूकैरियोट में इंट्रॉन्स होने के कारण, इंट्रॉन्स यानी बोल सकते हैं कि नॉन कोडिंग है, यानी कोरे सीक्वेंस है, उसमें कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, प्रोटीन बनाने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो कोरे सीक्वेंस ऐसा बोल सकते हैं इंट्रॉन्स के बारे में। पर इंट्रॉन्स जो है वो पर्टिकुलरली एमआरएनए पर आएंगे बीच बीच में, तो देयर विल बी यूकैरियोटिक जो आरएनए है वो इट इज मच मोर लॉन्गर लाइक दैट, इट विल कंसिस्ट ऑफ दैट इज एक्सॉन, ये कोडिंग रीजन इसको हम बोलेंगे ये एक्सॉन है, ओके। इट इज इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, सो देयर विल बी इंट्रॉन्स, फिर से एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, ठीक है। तो अल्टरनेटली एक्सॉन इंट्रॉन्स बनेंगे वहां। एक्सॉन जो है वो काम के है, कोडिंग है, ठीक है, इंट्रॉन्स जो है वो कोडिंग नहीं है। सो इन दिस वे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स, जिसके कारण जो लेंथ है आरएनए की वो बहुत ज्यादा रहेगी एक्चुअल एमआरएनए से। इस आरएनए को अब हम इंटरमीडिएट आरएनए बोलेंगे या प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए बोलेंगे, और एक टेक्निकल नाम है, इट इज नोन एज नाउ एचएनआरएनए। सो इट इज नाउ एचएनआरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है बच्चों। तो इंटरमीडिएट ऑफ एमआरएनए बोल सकते हैं, प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए बोल सकते हैं, या हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोल सकते हैं। इट इज नॉट एक्चुअल एमआरएनए नाउ, ठीक है, अगर वो यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट में वो एक्चुअल एमआरएनए बन गया। आगे बच्चों
ये HNRNA से अब उसका मैचुरेशन होके एक्चुअल mRNA बनेगा। HNRNA से mRNA, ठीक है। तो HNRNA से mRNA बनने की जो प्रोसेस है ये अब हम 3 स्टेप में डिस्कस करेंगे। यहां पर बना लेते हैं। HNRNA से mRNA बनने की प्रोसेस दैट इज नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेजेस या मैचुरेशन ऑफ mRNA बोल सकते हैं। इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है ये। तो एक्चुअल mRNA HNRNA जब एक्चुअल mRNA में बदलने के लिए देयर आर नाउ 3 स्टेप्स। इन फर्स्ट स्टेप देयर विल बी स्प्लाइसिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग पहले स्टेप का नाम। दूसरी स्टेप होती है बच्चों कैपिंग एंड थर्ड स्टेप टेलिंग। ये कंसेप्ट समझ में आया बच्चों आपके? तो हमने देखे थे कि कैसे वहां mRNA बना। प्रोकैरियोटिक सेल है तो mRNA जो बना ये तीनों स्टेप के बाद वो फाइनल mRNA हो गया, उसको आगे प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यूकैरियोट है तो कहानी थोड़ी अलग है। यूकैरियोट में अब वो फाइनल mRNA नहीं है, एक इंटरमीडिएट एक प्रिकर्सर बन गया है और उसको हम बोलेंगे HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए आगे चल के क्या बनाने वाला है? mRNA। लेकिन उसको 3 स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा, जिसको हम मैचुरेशन बोलेंगे या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेजेस बोलेंगे। कौन कौन से 3 स्टेप? स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग, ऐसे 3 स्टेप। तो देखो देखते हैं बच्चों इसके बारे में। स्प्लाइसिंग में क्या होगा? आप देखो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। स्प्लाइसिंग में एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से ये जो इंट्रॉन्स है वो कट किए जाएंगे, उसके सेगमेंट इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स को कट किया गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। एक्सॉन्स इट विल बी कट, ठीक है। और डीएनए लाइगेज की मदद से ये जो एक्सॉन्स है ये एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ा जाएगा। पहला एक्सॉन, सेकंड एक्सॉन, थर्ड एक्सॉन, फोर्थ एक्सॉन, ठीक है। तो ये एक्सॉन्स फिर एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे और एंट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस इट विल कट द एक्सॉन्स, ठीक है, and introns into pieces, and with the help of DNA ligase the axons they will be joined together। axons को एक साथ लाया जाएगा, एक साथ फिर से ज्वाइन किया जाएगा। इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा? रिमूवल होगा। किसका रिमूवल होगा बच्चों? देयर विल बी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा लूप आउट मैकेनिज्म के जरिए। रिमूवल्स इट विल बी removed, introns will be removed and there will be continuous joining of what? Axons। axons को कोडिंग रीजन को कंटिन्यूअसली ऐसे ज्वाइन किया जाएगा। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इट इज नाउ नोन एज स्प्लाइसिंग। ये स्प्लाइसिंग हो गया पहली स्टेप, ठीक है। तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम एंड इन दिस वे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर स्प्लाइसिंग हो गया। कैपिंग सेकंड स्टेप। अब आगे चल के क्या होगा कि यूकैरियोट में ये न्यूक्लियस में बन रहा है, ठीक है, और आगे चल के उसको साइटोप्लाज्म में जाना है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है। तो जब वो साइटोप्लाज्म में जाएगा सर्टेन एंजाइम्स एंड सर्टेन फैक्टर्स विल बी देयर, जिससे उसको बचना पड़ेगा, प्रोटेक्ट होना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए कैपिंग और टेलिंग होगा। देखो क्या होगा कैपिंग और टेलिंग में? इन कैपिंग कैप फॉर्मेशन, तो 5 प्राइम एंड की तरफ इस पोजीशन पर देयर विल बी एडिशन ऑफ मिथिलीन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मिथिलेटेड कैप यहां पर अटैच होगी 5 प्राइम पोजीशन पर। मिथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम मिथिलेटेड कैप बोलेंगे, मिथिलेटेड कैप, it will be attached at 5 prime end, that is methylene guanosine triphosphate, and in this way there will be now cap formation toward the 5 prime end, that is now known as the capping।
तो कैपिंग यानी जो प्रोसेसिंग जो हो रहा है एमआरएनए उसके 5 प्राइम एंड पर एक कैप बैठा ली जाएगी प्रोटेक्शन के लिए, और वो कैप बनी रहेगी MgPPP की, मिथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो दैट इज कैपिंग। उसके बाद होगी टेलिंग। टेलिंग में 3 प्राइम एंड की तरफ बहुत सारे एडेनाइंस, रिपीटेड एडेनाइंस, एडेनाइन 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 एडेनाइन, मिनी एडेनाइन, सो अबाउट 200 to 300 एडेनाइन सीक्वेंस एक दूसरे को जुड़ेंगे और एक स्मॉल सेगमेंट तैयार करेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे पॉली एडेनाइलेट टेल, ठीक है। तो पॉली एडेनाइलेट टेल, लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ एडेनाइन की एक छोटा सा सेगमेंट वहां बनेगा, ठीक है, रिपीटेड सेगमेंट ऑफ एडेनाइन, उसको बोलेंगे पॉली एडेनाइलेट टेल, ठीक है। तो 3 प्राइम एंड की तरफ देयर विल बी नाउ टेल। तो ठीक है बच्चों, तीनों स्टेप आ गई, स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, कैपिंग, मिथिलेटेड कैप फॉर्मेशन ऑफ मिथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट टुवर्ड द 5 प्राइम एंड शुरुआत में, और टेलिंग में पॉली एडेनाइलेट टेल, इट विल बी fitted or it will be attached toward the 3 prime end, ठीक है। So in this way it is now actual mRNA, ये actual mRNA है, ठीक है। mRNA पर जैसे हमने देखे थे RNA पढ़ते समय, here there will be now presence of unpaired nitrogen bases like that, जो एक्चुअली डीएनए के सेल स्ट्रैंड की कॉपी है, कॉम्प्लीमेंट्री है उसके। हमने यहाँ देखा था कि दे आर नाउ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3 सक्सेसिव नाइट्रोजन बेसेस, एंड 3 सक्सेसिव नाइट्रोजन बेसेस के ग्रुप को हमने वर्ड दिया था कौन सा, कोडॉन। सो इन दिस वे देयर विल बी कोडॉन, ओके। फिर ये जो कोडॉन है इसमें सबसे पहला कोडॉन जो है वो AUG है, ओके। AUG, इसको हम इनिशिएशन कोडॉन कहेंगे, ठीक है। फिर बीच में कोई भी कोडॉन आ सकते हैं 3 प्राइम एंड के तरफ, आइदर UAA, UAG या UGA, तीन में से कोई भी कोडॉन हो सकता है, इसको हम बोले थे टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। तो इन दिस में 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड के तरफ मिथिलीन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप, इनिशिएशन कोडॉन, in between different type of the codons, and finally termination codon, then polyadenylate tail 3 prime, ठीक है। तो it will be now complete structure regarding with mRNA, ये mRNA की बन गई complete structure, ठीक है। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड में नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में, ठीक है, वो कॉपीड हो गई एमआरएनए पर, और उसके आगे वो न्यूक्लियस से निकलकर फिर साइटोप्लाज्म में आएगा और ट्रांसलेशन में मदद करेगा, प्रोटीन बनाने से रिलेटेड मदद करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब बच्चों यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा में एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, जैसे हमने देखे सेंट्रल डोग्मा में डीएनए फॉर्म्स, ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो ऐसा बोलना ज्यादा सुटेबल नहीं होगा कि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, हमको ये बोलना पड़ेगा द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, इट विल डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, ओके। तो ये सेंट्रल डोग्मा हो गया विच इज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। सेकेंडली ऐसा देखा गया टेमिन और बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट ने, तो टेमिन एंड बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि रिट्रोवायरसेस में और रिबोवायरसेस में देयर इज आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, एंड इन दैट केस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम दैट आरएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से आरएनए से पहले डीएनए बनता है, इट इज नाउ नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यह हो गई ट्रांसक्रिप्शन से उल्टी प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। तो आरएनए से डीएनए बना, फिर डीएनए से आरएनए होगा बनेगा, तो ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन फ्रॉम आरएनए देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये बोलेंगे हम मॉडिफाइड या मॉडर्न